مولانا کیسے آئے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، آپ خیریت سے ہوں؟ بس آپ کی دعا ہے بہترین۔ بس آئے تھے، بس کچھ سوالات تھے جی تو کافی مطمئن ہونے کے لیے، اصل میں اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں ہم سے تو جوابات تو ہوتے ہیں لیکن دلائل نہیں ہوتے، تو دلائل کی روشنی میں بات کرنے کے لیے میں نے کہا کہ آپ سے چند سوالات کر لوں تاکہ دلائل کا ذخیرہ بھی ہمارے پاس ہو، تاکہ جو ہم سامنے والا اگر کوئی بھی سوال کرتا ہے بالفرض تو اس کے جوابات ہمارے پاس ہونا لازمی ہے۔ جی پوچھیں، کون سا سوال ہے؟ سوال نمبر مفتی صاحب پہلا میں اس سے آپ سے یہ ہے کہ قرآن پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، تو شاہد کا لفظ جو ہے یہ گواہ کے لیے آتا ہے، اور گواہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے، تو بریلوی حضرات جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے اور وہ شاہد کو گواہ کے معنی میں لیتے ہیں، تو آپ حضرات اس کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسئلہ حاضر اور ناظر میں ہمارا اور بریلویوں کا اختلاف نہیں ہے، یہ پورا لفظ بولیں، ہر وقت ہر جگہ حاضر اور ناظر، اس میں اختلاف ہے۔ حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود، ناظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ موجود ہوتے تھے وہیں حاضر بھی ہوتے تھے، ناظر بھی ہوتے تھے، اس میں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ جہاں تک ہے نا، وہ صرف یہ ہے کہ ہر وقت ہر جگہ حضور حاضر ہیں یا نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہے، اور انسان ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہوتا۔ حضور سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، اکمل البشر ہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ ہر جگہ موجود ہونا بلا کیف، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اگر ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر مانتے ہیں تو بہت سی آیات کا، احادیث کا انکار لازم آتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ شاہدن کا معنی ہے حضور پاک علیہ السلام گواہ ہے، اور گواہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو گواہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے تو پھر تو بریلوی پھنس جائیں گے اس مسئلے پہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 145 میں جو یہ ارشاد فرمایا ہے نا، تو پھر پوری امت حاضر بنتی ہے، ہر وقت بھی حاضر بنے گی، ہر وقت بھی ناظر بنے گی آپ کے اصول کے مطابق۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے امت محمدیہ کے لوگوں، آپ تمام پچھلی امتوں پر گواہ ہو۔ کل قیامت میں ہم نے گواہی دینی ہے نا پچھلی امتوں کی، تو جب ہم نے گواہی دینی ہے تو پوری امت گواہ ہے، مانو پوری امت حاضر و ناظر ہے، شاہد کی جمع آئی ہوئی ہے، شہداء علی الناس۔ اب بریلوی اس کا کیا معنی کرے گا؟ بریلوی پتہ ہے معنی کیا کرتے ہیں؟ ہاں بات تو ٹھیک ہے، پوری امت کو گواہ کہا ہے، لیکن اس کا معنی ہے انہوں نے حضور علیہ السلام سے باتیں سنی ہیں تو پچھلی امتوں پہ جا کے انہوں نے گواہی دینی ہے۔ تو ہم کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، ہمارے اعمال بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ حضور پہ پہنچا دیتے ہیں، حضور اعمال کو دیکھ کے ہمارے واسطے گواہی دیں گے، اسے گواہ کہا گیا۔ کسی کی خبر کی بنیاد پہ گواہی دینا بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھو، فرشتے خبریں پہنچاتے ہیں حضور علیہ السلام تک، حدیث سے ثابت ہے، ہم دیوبندی اس کو مانتے ہیں، ہم کوئی مماتی نہیں ہے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام تک عرض اعمال کی بات نہ مانیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں تو حضور پاک علیہ السلام اس کی موجودگی پہ گواہی دیتے ہیں، اور فرشتوں سے غلطی ممکن نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، سورۃ التحریم 28 پارے کا آخری صفحہ، اللہ فرماتے ہیں فرشتے جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اس نہ جھوٹ بولنے والے بندے کے مطابق حضور پاک گواہی دیتے ہیں۔ اور ہدایہ شریف کتاب الشہادات جلد 3 میں یہ بات موجود ہے، انما یجوز للشاہد ان یشہد بالاجتہاد باخبار من یثق بہ، کہ خبر ثقہ آدمی سے سن کے بھی بندہ گواہی دے سکتا ہے۔ تو حضور پاک جب تک دنیا میں موجود تھے صحابہ کو دیکھ کے گواہی دیتے تھے، اور جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے پھر امت کے اعمال حضور پر پیش ہوتے ہیں تو اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اس پر اہل سنت والجماعت احناف کا اتفاق ہے۔ چلیں دوسرا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ قرآن میں ہی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رحمت کہا کہ آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، تو رحمت تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے، تو پھر آپ رحمت جب ہر جگہ موجود ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضور بھی حاضر ناظر ہے۔ جب حضور کو رحمت کا لفظ کہا تو رحمت ہر جگہ موجود، تو حضور بھی ہر جگہ موجود۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ سورۃ انبیاء کی ہے اور آیت نمبر 107 ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو آپ کا دعویٰ یعنی بریلویوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جو رحمت اور رحمت ہر جگہ، حضور پاک بھی ہر جگہ، تو سورۃ یونس آیت نمبر 5 کا بریلوی کیا جواب دیں گے؟ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ فرماتے ہیں سورج روشن ہے، چاند بھی روشن ہے، میں نے سورج اور چاند کو روشن بنایا ہے۔ ایسی بات ہے؟ روشنی ہر جگہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو سورج بھی ہر جگہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ چاند بھی ہر جگہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ چاند ایک جگہ ٹھہر کے روشنی دے سکتا ہے،
सूरज एक जगह ठहर कर रोशनी दे सकता है, तो यही माना यहाँ कर लें कि हुजूर रहमत हुजूर एक जगह रह कर नूर नबुव्वत का फैज़ हुजूर फैला सकते। तो जैसे सूरज चांद रोशन है पर रोशनी हर जगह, सूरज चांद हर जगह नहीं है, इस तरह हुजूर रहमत है, रहमत हर जगह लेकिन हुजूर हर जगह नहीं है। इसकी एक और मिसाल, हमारी सराइकी ज़ुबान में बेटी को रहमत कहते हैं। किसी घर में बेटे पैदा हो तो कहते हैं नेमत है, बेटी पैदा हो तो कहते हैं रहमत है। तो जब बेटी रहमत है, रहमत हर जगह, बंदे की बेटी भी हर जगह होती है नहीं। तो फिर तो इसका ये माना नहीं है कि रहमत है हुजूर तो रहमत हर जगह, हुजूर भी हर जगह। तो ये बिल्कुल माना गलत है। 1400 साल से आयत मौजूद है। किसी सहाबी ने, किसी ताबी, किसी तबा ताबी, किसी इमाम, किसी मुहद्दिस मुफस्सिर ने जो अहल सुन्नत वल जमात है, इसका माना ये नहीं किया हुजूर हाज़िर नाज़िर। ठीक है। तीसरा सवाल ये कि वकैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु, कि तुम में ही रसूल है। जब तुम में ही रसूल है तो रसूल, जब अल्लाह ने कह दिया कि तुम में ही रसूल है तो ये भी मौजूद की दलील आती है। तो इसलिए कि हम ये कहेंगे कि हुजूर जगह हाज़िर नाज़िर है। ये सूरत नंबर 3 सूरत आल इमरान की आयत नंबर 101 है। अल्लाह पाक फरमाते हैं वफ़ीकुम रसूलुहु कैफ़ तकफ़ुरून आयातुल्लाह व अंतुम तुतला कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फ़ीकुम रसूलुहु, तुम्हारे अंदर अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। ये आयत कुरान करीम की है। लेकिन इसका क्या माना, हुजूर हाजिर है? क्या इसकी तफसीर में, इसके बैकग्राउंड में, इसके पस मंज़र में, इसकी तशरीह में कोई वाक़या मौजूद नहीं है? ये सिर्फ आयत अकेली तो नहीं है, इसकी आगे पीछे भी तो कोई वाक़या मौजूद है। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, ये वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, ये इसका पस मंज़र है, मा क़बल व मा बाद है। तो ये पूरी तफसीर वो उठाइए जो बरेलवी और हमारी मुश्तरका है। तफसीर कशाफ उठा लीजिए, तफसीर नसफ़ी उठा लीजिए, ये हम दोनों मुश्तरका मानते हैं। इन तफासिर ने लिखा है कि ये उस वक़्त की बात है कि जब कैस इब्न शुमास जैसे यहूदी ने सहाबा को लड़ाने की कोशिश की, झूठ बोल के। सहाबा में सुलह हो चुकी थी, फिर लड़ाने की कोशिश की, अरसर नौ लड़ाई की बात की, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक वहाँ पहुँच गए। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम को बताया कि मैं मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी में तुम जंग कर रहे हो, ये कौन सी बात है? तो सहाबा कराम को अल्लाह ने तंबीह करने के लिए आयत उतारी कि अल्लाह के बंदे, ओए सहाबा कराम, ओए नबी के शागिर्द, तुम्हारे अंदर अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, इस यहूदी बेईमान की बातें उनसे जाके पूछ लो, क्यों आपस में लड़ते हो? पहले पूछो। तो ये सहाबा को फरमाया गया तुम्हारे अंदर अल्लाह के रसूल, ये नहीं कहा गया क़यामत तक आने में हुज़ूर पाक मौजूद है। अगर फ़ीकुम रसूलु का माने हुज़ूर क़यामत तक मौजूद है, तो फिर मक्की और मदनी का फ़र्क क्यों है सूरतों का? ये सूरत आले इमरान मक्की है या मदनी, आप तय कर लें। तो जब मक्की और मदनी का फ़र्क है, कुरान में 114 सूरतें हैं, 86 मक्की हैं, 28 मदनी हैं। मक्की का माना हिजरत से पहले मक्का में उतरी, मदनी का माना हिजरत के बाद मदीने में उतरी। तो इसका माना हुजूर हर जगह होते तो मक्की मदनी का डिफरेंट ना होता। मक्की मदनी का फ़र्क बता रहे और हुजूर हर जगह हाज़िर नाज़िर नहीं है। फ़ीकुम रसूल हो तो ये एक वक्त की बात है, बग़ैर तफसीर के, बग़ैर तशरीह के किसी आयत का तर्जुमा कर देना और उस तशरीह से आंखें बंद कर लेना, ये तो ऐसा है जैसे कोई कहे अल्लाह फौत होगा। हम कहें अल्लाह फौत क्यों होगा? अल्लाह तो हय्युल क़य्यूम है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह तो जिंदा है, फौत कैसे होंगे? वो कहेगा कुरान करीम में कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मरना है। और कुरान में वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तुम्हें अपने नफ्स से डराता है। तो अल्लाह का नफ्स साबित हो गया, लिहाजा अल्लाह को मौत आएगी। तो हम कहेंगे क्या इसकी तफसीर, इसकी तशरीह नहीं है? बग़ैर तशरीह के बात समझ गए। तो बग़ैर तशरीह के अगर इस जगह बरेलवी फ़ीकुम रसूल से हाज़िर नाज़िर मानते हैं तो नऊज़ु बिल्लाह खुदा की मौत को भी फिर कायल हो जाए। ये सिर्फ उन वक्तों की बात है कि जो सहाबा को कहा गया कि आप में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, जाओ उनसे तस्दीक करा लो, बस इतनी सी बात। अच्छा, दूसरा 14 नंबर सवाल ये है मुफ्ती साहब, बरेलवी हजरात अपने प्रोग्रामात के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खाली कुर्सी छोड़ते हैं, तो ये देवबंदी इतने बेअदब क्यों है कि ये खाली कुर्सी नहीं छोड़ते? इसकी क्या वजूहत है? वो खाली कुर्सी क्यों छोड़ते हैं कि इसमें अल्लाह के रसूल आकर बैठेंगे? जी सुभान अल्लाह, खाली कुर्सी छोड़ते हैं बरेलवी, खाली मुसल्ला छोड़ देना। मैं इस मस्जिद में इमामत नहीं करूँगा, इसमें हजूर इमामत कराएंगे। कोई मौलवी अपना मिंबर छोड़ दे, मुसल्ला छोड़ दे, इसको शर्म नहीं आती? हुजूर की मौजूदगी में नमाज पढ़ाता है, ये हुजूर की मौजूदगी में सिद्दीक अकबर इमाम नहीं बन सकते थे, ये क्यों बना? इल्ला बेइज़्ने ना, सिद्दीक को हुक्म हुआ तो इमाम बने, वैसे तो नहीं बन सके। तो इसको हुजूर ने हुक्म किया तो मेरी जगह इमामत कर। हुजूर के लिए कुर्सी खाली छोड़ता है ये बंदा, मुसल्ला खाली क्यों नहीं छोड़ता? खिताबत की जगह खाली क्यों नहीं छोड़ता? जुमा भी लोग हुजूर के पीछे पढ़ें, नमाजें भी हुजूर के पीछे पढ़ें, जनाजा भी हुजूर के पीछे, ईद भी हुजूर के पीछे, सलातुल कुसूफ खुसूफ सारी हुजूर के पीछे पढ़ें। उस पर क्यों? उसका मसला कुछ और है। कुर्सी खाली छोड़ के वो हमें कहते हैं देखो हुजूर आकर बैठ गए हैं। तो जो हाजिर नाज़िर होते हैं वो आकर बैठते, वो आता कैसे है, जाता कैसे? कुर्सी खाली छोड़ते हैं। असल में पेट के खाने का चक्कर है।
मौलवी मिंबर छोड़ दे ना तो उसको मिलेंगे हलवे कहाँ से मिलेंगे, 11वीं का दूध कहाँ से मिलेगा, वो तो उसे माँ का जहर समझ के पीने पे तैयार है। इसी वजह से कुर्सी खाली छोड़ते हैं, मुसल्ला खाली नहीं छोड़ते। एक बरेली मुझे एक दिन कहने लगा हुजूर पाक मौजूद है और तुम कहते हुजूर मौजूद नहीं है, बड़ा मौजूद और छोटा कहे बड़ा नहीं है तो छोटा गुस्ताख होता है। मैंने कहा बड़े गुस्ताख तुम हो। कहते क्यों? मैंने कहा हम तो कहते हैं हुजूर है नहीं, तुम कहते हो है भी और नमाज पढ़ते हो फतूरी तू गामे दे पीछे, अपने इमामों के पीछे क्यों नमाज पढ़ते हो? तो तुम्हारा इमाम इमामत करा सकता है हुजूर की मौजूदगी में, तुम गुस्ताख नहीं हो। अगर हुजूर पाक मौजूद है सारे बरेलवी अपनी मसाजिद से इस्तीफ़े दे दें, अपनी खिताबत से इस्तीफ़े दे दें, अपनी जो है ना क्या कहते हैं इमामत से इस्तीफ़े दें, घरों में बैठने में हुजूर नमाज़ें पढ़ाएंगे। लेकिन ये पेट का मामला है, ये मईशत का मसला है, हलवे बंद होते हैं, 11वीं का दूध बंद होता है, तो इस पर बेचारे नहीं आते। ये भी कोई बात है कि कुर्सी खाली छोड़ो हुजूर आकर बैठेंगे, जो हाजिर नाजिर है वो आकर बैठते हैं, इनको क्या अकल वाली बात कर दी। अच्छा, उसका 5वां सवाल ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब रसूल हैं तो हर जगह के लिए है। रसूल हैं तो हर जगह हाजिर नाजिर हैं, यही बात है जी। अच्छा चलो, ये तो उर्दू तर्जमा है कि रसूल हैं तो हर जगह हैं, अरबी में तो हैं की बात नहीं होती। पहले उर्दू तर्जमे से अकीदा साबित करने पे बैठे, उर्दू ज़ुबान कब बनी है और हुजूर पाक कब आए हैं, उर्दू के लफ्ज़ से अकीदे साबित होते हैं। पहली तो ये बात है। दूसरी बात यह कि अगर उर्दू के लफ्ज़ से अकीदा साबित करते हो तो मैं अकीदा एक और देता हूँ। आप मुझे ये बताओ, काबा किबला है? जी काबा किबला है। है? इधर भी है, इधर भी है काबा, या काबा वहाँ है? काबा तो मक्का तो आपने है क्यों कहा? किबला तो है ना, इधर से किबला है, उधर से काबा है, जी ठीक है। इधर से हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल हैं, मौजूद सिर्फ मदीने में है, रिसालत इधर से भी है। जैसे काबे की ज़ात मक्के में है, उसका किबला होना पूरी दुनिया में है, हुजूर की ज़ात मदीने में है, हुजूर का नबी होने का ईमान पूरी दुनिया में। ये कौन सी बात? एक बच्चे का बाप दुबई हो और वो कहे अब्दुल सत्तार मेरा बाप है, तो इसका क्या माने? पाकिस्तान में ज़ात उसकी वही है, अबवियत उसकी यहीं से है, बेटा होना बाप होना उसका यहीं से मामला मौजूद है। एक बरेलवी एक दिन मुझे कहने लगा, एतराज़ असल में कुछ और था। एक बरेलवी कहने लगा इसमें दो चीज़ें, एक अल्लाह की बात है, एक नबी की बात है कलमे में। तो जैसे अल्लाह उलूहियत है वैसे हुजूर रिसालत है, तो जैसे अल्लाह की उलूहियत हर जगह वैसे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हर जगह। मैंने कहा अच्छा यही बात है? कहते जी हाँ। मैंने कहा अल्लाह उलूहियत और रिसालत ये दो ओहदे हैं, तो ओहदा जहाँ हो वहाँ ओहदेदार का होना ज़रूरी नहीं है। कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा मुल्क पाकिस्तान का सदर है। कहते जी। मैंने कहा इधर भी है। कहते नहीं इधर सदारत है लेकिन सदर वही है। मैंने कहा वज़ीर पंजाब पूरे पंजाब में होता है? कहते नहीं वो होता दारुल हुकूमत में लेकिन पूरे पंजाब का वज़ीर होता है। तो मैंने कहा पता चला ओहदा है, ओहदेदार हर जगह नहीं है। हुज़ूर पाक का ओहदा रिसालत है, रिसालत हर जगह है, हुजूर हर जगह नहीं है। ये बेचारे सादे लोग बने हुए हैं, इसलिए इन बेचारों को सोचना चाहिए। अगर यही बात है कि हुजूर हर जगह है, हर जगह है हुजूर, तो रसूलुल्लाह ने हज नहीं किया। इसका माना है हज का माना है मदीना छोड़ा मक्का गए। हुजूर अराफात नहीं गए क्योंकि पहले से थे, मिना नहीं गए पहले से थे, मुज़दलिफ़ा नहीं गए पहले से थे, तवाफ़ के बाद रमी जमार के नहीं गए पहले से थे, सफ़ा पे नहीं गए पहले से थे। ये कैसे? हुजूर ने पहले हज किया, पहले जो है ना तवाफ़ किया, फिर हुजूर ने आब ज़मज़म पिया, फिर हुजूर पाक ने नवाफिल पढ़े, फिर हुजूर पाक ने सही पे गए। तो फिर कैसे गए? वो तो पहले मौजूद थे। हुजूर पाक ने 27 जंगें लड़ी हैं, तो जब 27 जंगें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी हैं, तो 27 जंगें तो वो जाते हैं जो हर जगह मौजूद ना हो। तो जो हर जगह मौजूद हो वो 27 जंगें कैसे लड़ेगा? ये मैं इस बात पे हैरान हूँ कि 27 जंगें हुजूर पाक की मानते हैं। हुजूर पाक ने हिजरत की या नहीं की? 3 दिन किस जगह रहे हैं? गार में। तो जो हर जगह होते हैं वो गार में होता है? वो तो गार में भी है, बाहर भी है। मैं हैरान हूँ, पता नहीं है अगर हुजूर को हर जगह हाजिर नाजिर माने, हिजरत भी ख़त्म है, मेराज का सफ़र भी ख़त्म है। तो इसलिए इस बुनियाद पे अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा अपनाना। अच्छा, एक आखिरी सवाल है जी। जैसे 12 रबीउल अव्वल में जगह जगह लिखा हुआ होता है और ये हजरात कहते हैं कि जहाँ में धूम मची है सिवाय इबलीस के, जहाँ में सभी ईद मना रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये असल में शेर है, निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी खुशियाँ मना रहे हैं। यानी इबलीस खुशियाँ नहीं मनाता, बाकी सारे खुशियाँ मनाते हैं। इसका माना यही है? जी ठीक है। मुझे ये बताएं, ये हदीस पाक है कि जब हुजूर पाक फौत हुए तो महीना कौन सा था? रबीउल अव्वल था। जी। तो हज़रत उस्मान ने सलाम किया और हज़रत उमर ने जवाब नहीं दिया। उनने सिद्दीक को शिकायत लगाई। सिद्दीक ने पूछा उमर उस्मान के सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने फरमाया मुझे तो पता ही नहीं था, मैं इतना गमगीन था, हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। तिरमिज़ी में हदीस हज़रत अनस कहते हैं हमारे दिल परेशान हो गए जब हुजूर चले गए। वो तो परेशान है,
صحابہ سنسانی کا عالم ہے، مدینہ میں سناٹے کا عالم ہے. یعفور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دراز گوشت جانور جو تھا، اس نے جا کے اپنے آپ کو وہاں کنویں میں گر کے جو ہے نا اپنی جان دے دی. اونٹ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے آپ کو وہاں رونے لگ گیا اور مر گیا. کچھ وہاں اٹھنی حضور کی رونے لگی. ایک صحابی کو پتہ چلا ہل چلا رہے تھے، اللہ حضور دنیا سے رخصت ہو کے میری آنکھیں اٹھا لے، میں ان کو دیکھتا تھا. صحابہ تو رو رہے ہیں، پریشان ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں اور حضور پاک تسلیاں دے رہے تھے وفات کے وقت. اور یہ بے ایمان کہتے ہیں سارے خوش ہیں، ابلیس ناراض ہے. تو اس کا معنی نعوذ باللہ صحابہ ابلیس ہے. تو جو صحابہ کو ابلیس کے، اس کے ایمان کا اندازہ خود لگا لو. تو ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ پریشان ہونے کا عالم، اس کا معنی ابلیسی تھوڑی ہے. اگر یہی بات ہے تو طاہر القادری نے میلاد النبی کتاب میں لکھا کہ جب 12 ربیع الاول آتا تھا تو صحابہ کرام میں غم چھا جاتے تھے. طاہر القادری کی اس بات کا جواب بریلوی ملت کیا دے گی؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ غم چھا جاتے تھے. جب غم چھا جاتے تھے تو غم والا خوش میں مناتا ہے یا غمگین ہوتا ہے؟ غمگین ہوتا ہے. تو جو غمگین ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ابلیس ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ اس کا معنی طاہر القادری صحابہ کو گستاخ کہتا ہے. تو جب گستاخ ہے صحابہ کرام کو، تو اس کے دھرنے میں کیوں جاتے؟ اس کو فیر ماریں پھر. یہ عجیب بات ہے. ہمیں بریلویوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی. اللہ پاک ان بیچاروں کو عقل کی توفیق عطا فرمائے.